Good morning, Bhavya. Good morning, sir. Very good morning to all my dear students. Here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us.
Yes, so let's move forward to the liquid assets. We have seen the bank, or you can say the fixed deposit receipts, and the next one is bank guarantee. This is all about giving guarantee, a sort of guarantee or security to NSCCL by clearing members with respect to the security deposit or margin deposits. It may vary. It may be security deposit or it may be deposit for the margin, M2M shortage. On the basis of these securities provided by the clearing members to the NSCCL, NSCCL will approve the limits for clearing members. In certain cases, in security deposit, 50% cash is must, and rest of the 50% you can give any sort of guarantee like fixed deposit receipts, mutual fund NAV, bank guarantee, and so on. So now the next one is bank guarantee. Clearing members have to approach banks approved by NSCCL for issuance of bank guarantee. There are 13 banks, 1 3, approved by the NSCCL as far as the bank guarantee is concerned. Clearing member, those who wants to get bank guarantee, they need to approach those banks. It depends. It depends on your transactions, it depends on your turnover, it depends on your transaction history, that how transactions has been done by you as a clearing member. The list of such banks shall be provided in circular NSCCL approved securities and approved banks every month. No doubt, 13 primary banks are there. Apart from that, few banks are there who is indulged in such processes, but same time it must be approved by the NSCCL. And if you guys want to know that what are the banks approved by the NSCCL, then we need to take the visit of NSCCL website. It updates every month as far as the banks are concerned with the title Approved Securities and Approved Banks. Approved bank shall issue bank guarantee as per format specified in consolidated circular of respective segment issued by the NSCCL. Now, bank guarantee can be of two type. Depends. One will be segment specific, and one will be the regular one. You can utilize it in any segment. It can be easily transferable, and one will be very specific to the segment. Approved bank have to utilize the formats specified by the NSCCL. वो approved जो रहेगा वही they have to utilize. They cannot use any other format. And bank guarantee will be depends on your financial soundness, on your financial history, transaction history, and so on. So the types of bank guarantee issued by approved banks can be either fungible or non-fungible. Now, fungible bank guarantee means that member can place the bank guarantee as deposit in any of the segment where it is a clearing member. आपको जहाँ पे भी डिपॉजिट करवानी है आप वहाँ पे करवा सकते हो. आपकी बैंक गारंटी जो है वर्थ 500 करोड़ 100 करोड़ और so on. You can deposit it to any segment जहाँ पे आप क्लियरिंग मेंबर हो. As these BGs are not segment specific, it can be seamlessly transferred from one segment to another segment on intraday basis. For example, आज आपके क्लाइंट जो है वो कैपिटल मार्केट में बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं सुबह से लेकर 2 बजे तक कैपिटल मार्केट में बढ़िया ट्रेडिंग जो है वो हुआ है. वहाँ पे आपको लिमिट्स चाहिए थी, एक्सपोजर चाहिए था, तो आपने वो बैंक गारंटी का यूटिलाइजेशन अपने कैपिटल मार्केट सेगमेंट में किया. लेटर ऑन यू फील दैट ऑल द ट्रेड्स हैव बीन स्क्वेयर्ड ऑफ नाउ, तो अब मुझे यहाँ पे ये बैंक गारंटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब मेरे क्लाइंट्स जो है वो करेंसी डेरिवेटिव में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, तो विद इन इंट्राडे
सेम टाइम रियल टाइम आप वो जो बैंक गारंटी है उसको दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो। सो एक बैंक गारंटी का इस्तेमाल आप अलग अलग काफ़ी सारे सेगमेंट्स में कर सकते हो। यू कैन इजीली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन सेगमेंट टू another one. The benefit is transferred from one segment to another immediately. आपका कैपिटल मार्केट में ट्रेड्स जो है वो स्क्वायर ऑफ हो गए, वहाँ पे लिमिट की एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इजीली आप वो बैंक गारंटी को करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, दूसरे सेगमेंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड फिर वहाँ पे आपका एक्सपोजर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये था पहला टाइप, फंजिबल बैंक गारंटी। दूसरा है नॉन फंजिबल बैंक गारंटी। इट इज सेम इश्यूड बाय द बैंक टू मेंबर फॉर अ स्पेसिफिक सेगमेंट। एक सेगमेंट के लिए ही रहेगी एंड is issued by bank to member for a specific segment only, and to transfer it to another segment member has to submit a request letter and amendment letter from bank with specifying BG is valid for the another segment. ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी, थोड़ी टीडियस प्रोसेस हो जाएगी। क्लियरिंग मेंबर वुड लव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोसेस, तो वो लोग क्या करेंगे, दे वुड मोस्टली गो विद द फंजिबल बैंक गारंटी। आज इस सेगमेंट में रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एक्सपोजर ले लिया, कल या तो इवन इन इंट्राडे मुझे दूसरे सेगमेंट में रिक्वायरमेंट है एक्सपोजर की, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करके वहाँ पे मैं अपनी लिमिट्स जो है वो बढ़ा दूंगा ट्रेडिंग के लिए। नॉन फंजिबल में क्या होगा कि आपको स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ही दिया जाएगा, जो बैंक गारंटी आपको दी जाएगी इट विल बी फॉर अ स्पेसिफिक सेगमेंट ओनली, capital market, currency derivatives, or we can say SLBS or debt and something like that. It will be too precise and specific to that segment only, जिसके लिए वो issue हुई है वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। Now, if you want to transfer it फ्रॉम वन सेगमेंट टू द अनदर वन, तो वहाँ पे ये प्रोसेस टीडियस हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आपको अगेन वहाँ पे लेटर सबमिट करना पड़ेगा, एक अमेंडमेंट सबमिट करना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी सिक्योरिटी जो है वो दूसरे वैलिड सेगमेंट में ट्रांसफर की जाएगी। बट इट माइट बी पॉसिबल दैट सेम डे ट्रांजेक्शन शुड नॉट same day transaction may not executed. So specifying that the BG is valid for the other segment. Once got approval from the NSCCL and bank. In case transfer request is received for such BG, the benefit is removed immediately from one segment, but the benefit is added to another segment only after receipt of documents. Now in certain cases क्या होता है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों पे है एंड अभी तो इतनी लिमिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि मार्केट अभी अच्छा चल रहा है। बट सपोज सडनली वहाँ पे कोई डाउनफॉल आ जाता है, निफ्टी या फिर सेंसेक्स जो है वो 2000-3000 पॉइंट से डाउन हो जाता है, लोअर सर्किट लग जाती है, तो एट दैट टाइम सडनली आपको बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो सकती है एंड आप वो सबमिट भी कर सकते हो एंड करना भी पड़ेगा। क्लियरिंग मेंबर आपको एज ए क्लियरिंग मेंबर वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके ट्रेड्स जो है वहाँ पे स्टॉप कर दिए जाएंगे। तो आप वहाँ पे बैंक गारंटी जो है वो देते हो इमरजेंसी में अगर कुछ रिक्वायरमेंट आ गई है तो। नाउ दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो ये होगी कि वेरी नेक्स्ट डे आप वहाँ पे कैश डिपॉजिट कर दो, या तो आपका मार्क टू मार्केट जो मार्जिन है मे बी 2000 पॉइंट डाउन गया था बट क्लोजिंग जो है वो 500 पॉइंट्स ही आया, बाकी के 1500 पॉइंट्स रिकवर कर लिए, तो वहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो बैंक गारंटी थी वो वहाँ पे फ्री हो जाएगी क्योंकि आपका इतना शॉर्टफॉल नहीं था, सडन शॉर्टफॉल आया इसलिए एनएससीसीएल ने आपसे बैंक गारंटी मांग ली, आपने वो प्रोवाइड भी कर दी, बट अगेन मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक कर लिया तो वो बैंक गारंटी जो है वो आपकी फ्री हो जाएगी। इजीली आप वन सेगमेंट में से अनदर सेगमेंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। बट जिस सेगमेंट के लिए आपने वो जिस सेगमेंट के लिए आपने वो बैंक गारंटी दी है, अगर वहीं पे आपका शॉर्टफॉल है, वहीं पे आपका मार्जिन जो है वो शॉर्टफॉल हो रहा है, तो वो किसी दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर नहीं होगी। अगर वहाँ पे कोई शॉर्टफॉल नहीं है तो ही आपकी
बैंक गारंटी एक सेगमेंट में से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इवन इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल आज सुबह की बात करते हैं प्रैक्टिकल वे में, कि आज सुबह में आपने बैंक गारंटी दी है 500 करोड़ की, कोई भी ट्रेड नहीं हुए है या तो ट्रेड्स जो है वो सभी स्क्वायर ऑफ हो गए, तो आप उसको दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बट सपोज कोई ट्रेड हुआ है, आपके पास इनफ मार्जिन एंड मार्केट क्रैश हो जाता है, तो भी वो वहां पे ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। ये दोनों चीज़ों में एनएससीसीएल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर नहीं होगी। So this is how it can be worked out. There are only two types. Most of clearing members would like to go with the fungible bank guarantee. Clear? Any doubts, class? Okay, thank you. ये डेटा यहाँ पे जो है लिमिट, बैंक गारंटी की कितनी लिमिट हो सकती है, काफ़ी पुराना है। Bank guarantee issuance limit for a bank. The issuance of bank guarantee to clearing member is subject to bank-wise or member-wise limits as specified. The maximum value of bank guarantee that can be issued by a bank per clearing member across segment is linked to bank's net worth. ये डेटा काफ़ी पुराना है, क्योंकि nowadays 5 करोड़, 10 करोड़, 35 करोड़, it's of no use. The amount is there in thousands, 500 crore, 1000 crore and so on. नेटवर्थ ऑफ द इश्यूइंग बैंक, अब जो बैंक गारंटी इश्यू करती है, पर्टिकुलर जो बैंक, अगर हम बात करें यस बैंक की या फिर कोई दूसरे बैंक की, कोई भी कोटक महिंद्रा हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो जब कोई भी बैंक गारंटी इश्यू करती है तो उसकी नेटवर्थ कितनी है, उस हिसाब से वो अपनी बैंक गारंटी जो है वो इश्यू कर सकती है। जैसे कि कोई बैंक है, उसकी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से 200 करोड़ तक की है, तो वो 5 करोड़ तक की बैंक गारंटी इश्यू कर सकती है। एप्लीकेबल टोटल लिमिट, ये टोटल लिमिट है। अब आप बोलोगे कि ये 5 करोड़ मुझे कैपिटल मार्केट में यूज करने हैं, तो आप कर सकते हो। आप बोलोगे कि मुझे 2.5 करोड़ कैपिटल मार्केट के लिए बैंक गारंटी चाहिए और 2.5 करोड़ मुझे करेंसी डेरिवेटिव के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से होगा। टोटल लिमिट विल बी 5 करोड़ रुपीज ओनली। नाउ ऐसी बैंक जिसकी नेटवर्थ जो है वो 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक है, वो 10 करोड़ की बैंक गारंटी इश्यू कर सकती है टू द क्लियरिंग मेंबर्स। Now 500 crore to 1000 crore, the limit would be 15 crore. Then 1000 crores to 2000 crore, limits would be 25 crore and later on 35 crores. But ये amount, do you think that this much, 30, 50, 100 crore rupees are enough nowadays in stock market? अगर आप MRF का शेयर परचेज करने जाओगे तो वो टफ हो जाएगा। Can anybody tell me the current share price of MRF?
share price of MRF. Yes, very good. सो आप देख लीजिए, अब आपको ये परचेज करना है तो आप किस हिसाब से करोगे। ऐसे कई सारे शेयर्स है जिसके प्राइसेस जो है वो अबो 1 लाख भी है। नो डाउट ये स्प्लिट होगा, थोड़ा टाइम में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो जाएगा मतलब इट विल बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का शेयर हो जाएगा तो एक शेयर के सामने आपको 100 शेयर्स दिए जाएंगे एंड प्राइस जो है उसकी 1000 हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। आप उसको स्प्लिट बोल सकते हो। ये शेयर्स जो है स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट इनटू 110 डिपेंड्स। तो अब ये फिगर्स जो यहाँ पे है बुक में वो काफी पुराना है। लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो एकदम अलग हो गया है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे मैटर करती है। पहले बैंक जो थी इश्यूइंग बैंक, उसकी नेटवर्थ काफी कम होती थी, बट नाउअडेज जो इश्यूइंग बैंक है उसकी भी नेटवर्क काफी ज्यादा है, तो दे कैन इश्यू बैंक गारंटी अकॉर्डिंगली। अब ये एमआरएफ जो है उसने इंटरिम डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया है। कितने रुपए का डिक्लेयर किया है मालूम है किसी को? एमआरएफ ने इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है। वो डिविडेंड की अमाउंट है सरप्राइजिंगली 3 रुपीज। नाउ अगर इश्यूइंग बैंक जो है उसकी नेटवर्थ 3000 करोड़ से ज्यादा है तो फॉर ईच 1000 करोड़ ऑफ नेटवर्थ एन इंक्रीमेंटल लिमिट ऑफ 10 करोड़ पर मेंबर इज अलाउड। मतलब जो 35 करोड़ की थी उसमें आप 10 करोड़ ऐड कर सकते हो। अगर नेटवर्थ जो है वो 4000 करोड़ है तो वहां पे आप 10 करोड़ और ऐड कर सकते हो। तो उस हिसाब से 1000 करोड़ की नेटवर्थ ज्यादा होगी तो वहां पे 10 करोड़ आप ऐड कर सकते हो। आप उसको बिंग बैंक गारंटी किसी भी क्लियरिंग मेंबर्स को दे सकते हो। In respect of bank guarantee issued by the designated clearing banks, the maximum value of bank guarantee that can be accepted from each of these designated clearing banks is set at the next higher slab in which they would have ordinarily been compared with their net worth. For example, a bank with net worth of rupees 3500 crore, that is not a clearing bank, can issue bank guarantee of 35 crores or clearing members. But the one which is clearing bank with similar net worth can issue bank guarantee up to rupees 45 crore to the clearing members. अब जो प्राइमरी क्लियरिंग बैंक्स है, जो 13 बैंक्स है जो हमने पहले डिस्कस किया था 13 10+3, जो 13 बैंक्स है प्राइमरी क्लियरिंग बैंक, अगर उसकी नेटवर्थ 3500 करोड़ है तो वो वहां पे 45 करोड़ का बैंक गारंटी इश्यू कर सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दोज 13 बैंक्स, अगर कोई दूसरा बैंक है जिसकी नेटवर्थ 3500 करोड़ है तो वो वहां पे 35 करोड़ की ही बैंक गारंटी इश्यू कर सकता है, जबकि प्राइमरी क्लियरिंग बैंक जो है वो वहां पे 10 करोड़ ज्यादा इश्यू कर सकते हैं। ये बेनिफिट उसको मिलेगा क्योंकि दे आर प्राइमरी बिकॉज दे आर प्राइमरी क्लियरिंग बैंक्स, दैट्स व्हाई ये बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। Now, category of member and available total limits. Total limits उसको कितनी मिल सकती है? First one is professional clearing members of F&O, that is future and option segment, या तो custodian clearing members of the capital market segment। तो वहां पे उसको टोटल लिमिट जो है वो 200 करोड़ की मिल सकती है। देन ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स इन F&O, तो वहां पे उसकी लिमिट जो है वो 100 करोड़ की रहेगी। एंड अदर कैटेगरीज ऑफ द मेंबर्स, तो वहां पे 50 करोड़ रुपीस जो है वो रहेगी।
Please be online, students. Now, guidelines for depositing of the bank guarantee. Bank shall issue bank, बैंक गारंटी कंफर्मिंग टू अबव लिमिट्स। जो लिमिट्स है उसकी जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से ही उसको बैंक गारंटी इश्यू करनी है। जो भी 13 बैंक्स है या तो एनएससीसीएल में जो लिस्टेड बैंक्स है वही बैंक गारंटी इश्यू कर सकती है, डिपेंड्स ऑन इट्स नेटवर्थ। The bank guarantee is strictly as per the prescribed format for fungible bank guarantee and format for non-fungible bank guarantee. जो भी फॉर्मेट है दे हैव टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। लास्ट में आपको सभी फॉर्मेट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अलग अलग फॉर्मेट्स रहेंगे, नॉन फंजिबल का भी फॉर्मेट अलग रहेगा एंड फंजिबल का भी फॉर्मेट वहाँ पे अलग रहेगा। Now tell me what is the difference between fungible bank guarantee and non-fungible bank guarantee? Kindly type your answers. The difference of fungible and non-fungible. Okay. Where member is submitting fungible bank guarantee, it shall submit letter to clearing corporation as per prescribed format specifying that the segment where benefit needs to be provided. फंजिबल बैंक गारंटी अगर वो क्लियरिंग मेंबर ले रहा है तो उसे वो फॉर्मेट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा एट इनिशियल स्टेज कि भाई ये गारंटी जो है वो मैं पर्टिकुलर इस सेगमेंट के लिए ले रहा हूँ। They have to specify the segment itself. The instruments are accepted at regional office of NSCCL. अब तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो गई, अदरवाइज प्रीवियसली फिजिकल फॉर्म में जब ये सब होता था तो वहाँ पर रीजनल ऑफिस के साथ ही आपको डील करनी पड़ती थी। A bank guarantee for security deposit has to be issued for a minimum period of 12 months. मिनिमम पीरियड वुड बी 12 मंथ्स अगर कोई भी बैंक गारंटी जो है इश्यू की जाती है तो विथ स्पेसिफिक क्लेम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स। अगर आपको उसे विड्रॉ करनी है तो आपको 3 मंथ्स का क्लेम पीरियड जो है वो वहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बैंक गारंटी दे दी, अब आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया और कल आप बोलोगे कि ना इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो आप
उसको वापस ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम 3 मंथ्स का क्लेम पीरियड जो है वहां पे आपको देना पड़ेगा। However, whenever an issuing bank does not provide for a specific claim period beyond the expiry date in the bank guarantee, the members have to submit a bank guarantee for a minimum period of 15 months. अगर कोई ऐसी बैंक है जहां पे वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पे बैंक गारंटी ड्यूरेशन वुड बी 15 months. The maturity period of such bank guarantee is reduced by 3 months, so later on it comes exactly to the 12 months. A bank guarantee for margin deposit should have validity for a minimum period of 3 months. In case the issuing bank does not provide for a specific claim period beyond the expiry date in the bank guarantee, the maturity period of such bank guarantee is reduced by 7 days. अगर वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं मिलते, वहाँ पे स्पेसिफिक क्लेम नहीं होता है ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली, जो क्लेम पीरियड रहेगा 3 मंथ्स का, मिनिमम पीरियड वुड बी 3 मंथ्स, तो वहाँ पे कुछ अपडेट्स नहीं आते, रिन्यूअल नहीं होता है, तो वो ड्यूरेशन जो है वो 7 days से कम हो जाएगी. इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 7 days, which is considered as the claim period of such bank guarantee. While filling the details in a bank guarantee, bank members have to ensure that no relevant portion is left blank. उसका जो specified format है उसमें कुछ भी blank नहीं होना चाहिए. All handwritten corrections and blanks are attested by the bank by affixing the bank seal stamp duty authorized. अगर वो फॉर्म जो है उसमें कुछ भी करेक्शंस हुए हैं आपसे या फिर कोई भी स्पेस ब्लैंक है तो वहाँ पे बैंक को अपना सील स्टैंप या जो भी ऑथोराइज सिग्नेचरी होगी वो वहाँ पे करनी पड़ेगी. All irrelevant portions stocks of on the printed format have to be authenticated by the bank by affixing the seal or stamp. या तो वहाँ पे उसको साइन करनी पड़ेगी या तो सील या स्टैम्प जो है वो लगाना पड़ेगा. जो प्रिंटेड है उसमें हैंड रिटन है तो वहाँ पे भी उसको करना पड़ेगा, प्रिंटेड है तो भी उसको वो करना पड़ेगा. Each page of the bank guarantee should bear the bank guarantee number, issue date, stamp of the bank, and should be signed by at least 2 authorized signatories. 2 लोगों के वहाँ पे मिनिमम सिग्नेचर चाहिए जो कि ऑथोराइज्ड है उसके लिए. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें गारंटी का नंबर होगा, इश्यूइंग डेट होगी, बैंक का स्टैंप होगा एंड डेफिनेटली मैच्योरिटी डेट जो कि मिनिमम 1 ईयर की है वो भी वहां पे मेंशन की जाएगी. The member should also ensure that the bank guarantee is free from any discrepancy before the same is submitted to NSCCL. It should be very clear cut. कोई भी डिस्क्रिपेंसी जो है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए. Once you submit those bank guarantees to the NSCCL, the stamp paper should be issued in the name of the clearing members or the bank. No third party stamp papers are permissible. स्टैम्प पेपर मतलब जो लीगल पेपर्स हम यूज करते हैं वो क्लियरिंग बैंक्स के नाम पे ही होने चाहिए या तो क्लियरिंग मेंबर्स के नाम के होने चाहिए. उसके अलावा थर्ड पार्टी के नाम के स्टैम्प पेपर्स जो है वो अलाउड नहीं है. और स्टैम्प पेपर जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए. अगर आपके पास कोई पुराना स्टैम्प पेपर है और जिसको आपने 6 महीने पहले परचेज किया था तो इसका उपयोग अब आप नहीं कर सकते हो. The stamp paper should not be older than 6 months from the executed or renewal date of the bank guarantee. 6 महीने से पुराना स्टैम्प पेपर जो है वो नहीं चलेगा. स्टैम्प पेपर आप थर्ड पार्टी से परचेज नहीं करवा सकते हो, या तो क्लियरिंग मेंबर को परचेज करना पड़ेगा या तो क्लियरिंग बैंक को परचेज करना पड़ेगा. बट ये पुराना हो गया, अभी तो उसमें फ्रैंकिंग आ गया जो काफ़ी इजी रहता है. किसी भी बैंक में जाओगे मतलब लोअर लेवल पे भी एंड यूजर पे भी वो इतना
कंफर्टेबल हो गया. In case of renewal of bank guarantees, the members have to furnish the renewal documents strictly in the prescribed format before the date of expiry or maturity, date of the bank guarantee. वो वहाँ पे आपको specify करना पड़ेगा, clarify करना पड़ेगा. And the last one is member shall refer collateral reports and reminder letters downloaded to member extranet of respective segment to track the maturity date of instrument for initiating the process of renewal. जो आपको रिमाइंडर्स जो है वो दिए जाएंगे अकॉर्डिंगली सेगमेंट. आपका सेगमेंट कौन सा, उसमें मार्जिन क्या है, कोलेट्रल का रिपोर्ट क्या है, शॉर्टफॉल कितना है, कितने टाइम में आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट एंड सो एंड सो एंड सो मेनी थिंग. तो एक पूरा रिपोर्ट जो है वो जनरेट किया जाएगा एंड वो आपको एज ए रिमाइंडर दिया जाएगा. Reminder letters are downloaded on a weekly basis to members extranet. जो एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं उसको डायरेक्टली ये भेजा जाएगा. क्लियरिंग मेंबर्स के लिए ये लीज लाइन होती है जहां पे वो एक्स्ट्रानेट का यूज कर सकते हैं. गिविंग डिटेल्स ऑफ द बैंक गारंटी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट ड्यू फॉर रिन्यूअल इन द फॉलोइंग मंथ. तो ये इस हिसाब से यहाँ पे सेगमेंट वाइज जो है वो रहेगा. द नेम एंड लोकेशन ऑफ डाउनलोड ऑफ द लेटर इज सेगमेंट रहेगा उसमें. देन नेमिंग फॉर्मेट, रिमाइंडर्स, मेंबर, उसका कोड जो है वो रहेगा एंड डेट रहेगी. लोकेशन ऑफ डाउनलोड इन मेंबर्स एक्सटर्नल दैट इज रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स नाम का जो वहाँ पे आइकन होगा वहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो. बट दिस इज फॉर क्लियरिंग मेंबर्स ओनली. फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव्स, डेट एंड SLBS. The reminder letters are provided as an additional facility only, and members shall have to submit the renewal of the bank guarantee and fixed deposit receipts within the stipulated period to avoid any actions. जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा, in that duration only they have to either renew or they have to go for the further procedures. Otherwise, actions will be taken by NSCCL that may convert into fine, penalty, and something like that. So this is bank guarantee that comes under liquid assets. Any doubt for this class? Okay, good. So we'll start securities in next session. Today we'll keep up to this only. I am sharing one article with you. You guys are requested to read it. Please be online.
Please go through this link and read out the cash on bank guarantee for Hindustan Construction Company Limited. Please go through this link and read it.
Uh, we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you, class. You may leave now. Mark your attendance in the chat box. Bhavya, you may leave now. If you have any questions,